Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you are not subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. This is the pre-market report video for 8 December 2025, that is for Monday. Friends, in this video we are going to cover F analysis, post-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view and outlook for Monday. We are also going to review the technical levels we supposed to look for longs and shorts on Monday. So, needless to say, we are going to cover everything, including the global and local cues. Let us start our overview with the last trading day, that is on 5th December, last Friday. So, if you look at our market, if you can see that Nifty, Sensex, Bank Nifty, almost all the indices they were able to close in good green. And this was expected as well because the RBI rate cut was almost certain. And I told you guys in our video also. So wait for 11 o'clock, and whatever direction market picks after 11, that will be the direction for the day. And it happened exactly in that way. I was expecting a target of 26 to 20, but it came up to 200. We can hope that new ATS can roll in the coming days. Let us go to the chart and try to understand and analyze our data. Friends, before we get into the Nifty and all our index charts, let us try to understand some crisis what is currently going on in our country. This is related to the Indigo crisis. So those who are not aware what happened uh, currently, DGSC has given a directive to Indigo that all their pilots supposed to take a rest of 48 hours per week. So previously it was given only 36 hours. They've given this direction to all the flight operators during last year itself. But Indigo and all, they were not taken that into consideration. This is completely Indigo's negligence. So as a result, what happened? You can imagine that from 36 hours to 48 hours, there is a shortage of 12 hours in between. And Indigo doesn't have that many reserve pilot to address that issue. तो उसके चलते हुए क्या हो गया, उनका बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा, करीब 500 फ्लाइट्स डेली बेसिस में. तो आपको इसका मैथ समझना पड़ेगी क्यों इतना है. इंडिगो हम लोग देखेंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर में मोर देन 60%, ऑलमोस्ट 66% शेयर इंडिगो का है, और फ्लाइट ऑपरेट करते हैं अराउंड 2200 फ्लाइट्स पर डे. And if you and 25% of there because of this 12 hours delay, and they don't have adequate pilots in reserve, तो उसके चलते हुए क्या हुआ, 25% उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के ऊपर अ, भारी पड़ा. तो 25% आप सोच सकते हैं, 2200 का 25% आते हैं, रफली 500 आते हैं, उतना फ्लाइट ही डेली कैंसिल होता है यार. दिस इज नॉट अ मिस्टेक फ्रॉम गवर्नमेंट. इनका गवर्नमेंट का गलती है नहीं इसमें कुछ. इन्होंने इंडिगो को पहले से ही बता दिया इतना रश चाहिए, नहीं तो पायलट अगर रश नहीं लिया तो कुछ भी मिशअप हो सकते, जैसे अहमदाबाद वगैरह में जैसे मिशअप हुआ ऐसे होते. उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, यह अच्छा स्टेप है. लेकिन क्या है, इंडिगो पायलट नहीं है. बहुत लोग सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंडिगो, एयर इंडिया या बाकी जो जितना भी प्लेस उनका पायलट ले सकते, ये ले नहीं सकते. जितना भी सीनियर पायलट है उनका 12 मंथ्स नोटिस पीरियड रहता है. इसका मतलब है, मान लो एयर इंडिया से कोई इंडिगो में आना चाहते, 1 साल के बाद ही आ सकते सीनियर पायलट. जूनियर पायलट का 6 महीने का मेरे ख्याल से. तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ये पूरा एक ही, जैसे मोनोपोली चलते हैं हमारा मार्केट में, पूरा इंडिगो का मोनोपोली है. इंडिगो क्या है, जानबूझकर लोगों को झटका दिया. तो गवर्नमेंट इनके ऊपर पूरा कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर पूरा पेनाल्टी लगाने चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली कौन सफ़र करते हैं, आम लोग सफ़र करते हैं. लोग कितना उम्मीदों लेके एयरपोर्ट में पहुंचते, बाद में पता चलते एयरपोर्ट जो फ्लाइट कैंसिल हुआ. कितना लोगों का ऑनवर्ड फ्लाइट जो यूरोपियन कंट्रीज, यूएस और मिडिल ईस्ट, बहुत सारे जगह के लिए जो रवाना होते हैं, वो सब उनमें पूरा पानी भर दिया. बहुत बहुत लोगों का नौकरी चला गया. कौन इसके लिए जिम्मेवार रहेगा? तो इंडिगो जिम्मेवार रहेगा. लेकिन क्या हमारा
गवर्नमेंट को इतना गट्स नहीं इंडिका को दोषी साबित करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। चलिए, हम लोग इस ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। हो सकता है अभी के गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, अभी क्या है इसको पॉज कर दिया सब नेक्स्ट फरवरी मार्च तक। एक हफ्ता में ये जितना भी डिसरप्शन है सब ठीक हो जाएगा। चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं। दिस इज निफ्टी, आई एम यूजिंग ए 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो दोस्तों, आप क्या करना है, हमारा चार्ट के ऊपर एक पैरेलल चैनल बना देना निफ्टी का। तो दिस इज द पैरेलल चैनल, दिस इज द ट्रेंडिंग अपवर्ड चैनल है। तो जब तक ये चार्ट चैनल ब्रेक नहीं होते नीचे के साइड, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। और लॉन्ग के लिए भी क्या होगा, अगर इधर इधर तक आएगा, पहले यहाँ से थोड़ा सा ये डिप ले सकते, ये बीच में जो लाइन है इधर तक आ सकते, नहीं तो नीचे तक आ सकते, फिर उससे यहाँ से फिर बाउंस आ जाते। तो ये पैरेलल चैनल अपना चार्ट में आप बना देना, ये आपको मदद करेगा। रहा बात लॉन्ग और शॉर्ट के लिए, फॉर शॉर्ट्स लुक एट द 20 एम, इट इज कमिंग अराउंड 26,150। जब तक ये 26,150 के नीचे नहीं जाते आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। फॉर लॉन्ग्स आज का जो हाई है 200, जब 200, आई एम जस्ट सेइंग 220 के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोचना। और जितना भी ईएमआई वगैरह आप लगा देना उसका आपको मदद हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी जाएगा, तो बैंक निफ्टी में मुझे एक चार्ट नज़र आ रहे, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे एक चार्ट आप बना देना, ये पॉइंट्स सब आप देख लेना वीडियो पॉज करके। ये भी 15 मिनट्स चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी लेवल है, जब तक ये 20 ईएमआई के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई स्कैल्पिंग शॉर्ट करना चाहते हैं वो इमीडिएटली 59,750 को नीचे कर सकते हैं, लेकिन 100-150 पॉइंट मिलेगा। तो लॉन्ग के लिए आपको 800 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, और शॉर्ट के लिए मेरे हिसाब से 600 के नीचे ही वीक होगा। चलिए हम लोग सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में भी ए 20 EMA को मार्क कर लेना, अराउंड 600 के नीचे ही शॉर्ट करना है इसको। आपको टारगेट मिलेगा 400 या 400 तक मिल सकते हैं। अप मूव के लिए 800 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना, तो आपको 86,000 तक मिल सकते हैं। और मिड कैप में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ गया। आपको याद होगा, आप चाहते वीडियो पॉज करके देख लेना, मैंने जो फ्राइडे का प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में मैंने आपको बोला, ये जो ट्रेंडिंग चैनल एक बनाने के लिए मैंने बोला, जब तक ये चैनल के नीचे इसमें शॉर्ट रहेगा, इसके ऊपर रह जाएगा तो लॉन्ग के लिए आप सोचना। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ऊपर गया, वहाँ से सीधे ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल मार्क करना है, 1420 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना। और शॉर्ट के लिए 950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये देख लेना, ये 960 के पास आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ 960 के पास 20 में तोड़ेगा तब करना। इंडिया विक्स में सबसे ज़्यादा गेम इंडिया विक्स में लोगों ने क्या कर दिया, इंडिया विक्स को पाताल में डाल दिया। तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 5% डाउन। तो ये बहुत सारे रिटेलर्स से अल्ट्रा बेयरिश बन गया। जैसे मार्केट ऊपर चला गया, 100 के ऊपर चला गया, 2600 के ऊपर चला गया, लोग सब बेयरिश बन गया, सारे लोग कॉल शॉर्ट करने में पड़ा और बहुत सारे लोग पुट खरीदने में पड़ा था। तो ऑपरेटर ने क्या कर दिया, पूरा विक्स को गिरा दिया ताकि सारे प्रीमियम चूर चूर हो जाए, सब लोग लॉस में। मैक्सिमम रिटेलर ऑप्शन बाइंग ही करते, उनको लॉस में निकालने के लिए इनका एक टेक्निक था। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते और डिस्कशन को आगे बढ़ाते। तो यूएसडी आईएनआर में हम लोग देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर में कोई खराबी नहीं है। तो इवन रेट कट के बाद भी सब लोग सोच रहा है कि ऊपर भागेगा, लेकिन ऊपर भागा नहीं, ये अभी स्टेबल दिख रहे हैं। ये ठीक है, बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर वाले के लिए ठीक ही दिख रहे हैं मुझे। क्रूड में हम लोग आते हैं, क्रूड भी स्टेबल दिख रहा है, ज़्यादा हलचल मुझे नहीं दिख रहे। क्रूड जब तक 5400 के ऊपर है, इसमें बुलिश नजर है। देखना, अगर आपको शॉर्ट करना है 5400 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड में बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन जो पीसी के डाटा आया यूएस में, उसके बाद इसमें कुछ हलचल चल रहा था। सिल्वर अभी भी ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ से गोल्ड में आपको एक चीज़ चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं गोल्ड में क्या हो गया, 4260 से गोल्ड
नीचे गिर गया, 4197 तक गिर गया। लेकिन क्या हमारे एम सिक्स जितना भी एम सिक्स ट्रेडर्स है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि 11:30 12 ओ क्लॉक तक एम सिक्स बंद हो जाते, उसके बाद ही ये मूव आया। एंड आफ्टर दैट इट विल बी ओपनिंग ओनली ऑन मंडे। तो फ्राइडे में क्या है, 11:30 बजे तक एम सी एक्स में जितना भी शॉर्ट कर रहा उनको बहुत सारे नुकसान हो गए, 4260 तक पहुंच गया। कोई भी अगर शॉर्ट किया होगा पिछले 2-3 दिन में गोल्ड को, उनको अच्छा खासा नुकसान हो गया, और हमारा रुपये का वीकनेस और उसके ऊपर और नमक छिड़क दिया। लेकिन क्या है, बाद में उन लोगों को एक रिलीफ रिट्रेसमेंट मिला है, लेकिन उन लोगों को फ़ायदा उठा नहीं पाया, क्योंकि हमारा मार्केट बंद रहते हैं। देख कितना बड़ा गिरावट है। इसलिए क्या है, गोल्ड में जो भी शॉर्ट करते हैं उनको हमेशा मेरे हिसाब से 80 to 90% टाइम्स उन लोग लॉस में रहते हैं। जो भी गोल्ड में लॉन्ग करते हैं उनका 80 to 90% प्रॉफिट में रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते हैं। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है। तो फ्राइडे में बहुत सारे डाटा आया। तो ये इंटरेस्ट रेट हमें पता है, ये 25% बेसिस पॉइंट कट किया है, लेकिन यूएस में क्या है, कोर पीसी है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। जब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ जाते हैं, क्या रेट कट के लिए होप कम हो जाते हैं। और इधर और भी देख सकते हैं आप, ये जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है 2.9 का उम्मीद है, लेकिन वो नीचे आ गया। तो क्या है, रेट कट करने में फेड को दोबारा सोचना पड़ेगा, इसी का कारण गोल्ड गिरी है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए बहुत सारे डाटा ड्रिवन वीक रहेगा। मंडे देर इज नो डाटा, बट फ्रॉम ट्यूसडे जॉब्स ओपनिंग है, दैट मीन्स वट एवर द जॉब ओपनिंग विच वॉज इन October, which was carried to November, it will be showing. If that job carry forward positions are less, if this data is negative, then that can also influence the red cut decision. And Thursday को क्या है, FOMC स्टेटमेंट है, एफएमएस स्पीच है, और इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। सो सारे ग्लोबल मार्केट 11 को इसी इसी न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, एवरीथिंग। एंड फ्राइडे को हमारा सीपीआई का डाटा भी आएगा, इंडिया का सीपीआई डाटा आएगा। सो नेक्स्ट थर्सडे एंड फ्राइडे महत्वपूर्ण डाटा आने वाला है। चलो हम एफ एन ओ डाटा के ऊपर एक बार नज़र मारते हैं। आई होप पीपल हु आर part of my channel they know how to read this data. For those who are joining new, I'll quickly explain. So Thursday means last to last trading day, Friday means last trading day, and total means what positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Monday. If you look at index futures, ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। रिटेलर ने कुछ 5000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, डीआई एंड एफए ने कुछ बाई किया, प्रोस कुछ सेल किया। But the important thing to note is that FA reduced their shorts. So I would say this data is mixed to bullish. Index gold में यहाँ there is a very good news that retailers started shorting calls. ये पिछले हफ्ता पूरा बाई करते जा रहा था, अभी क्या है शॉर्ट करने शुरू किया, तो उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.21 lakhs. And FA and pros both have purchased very good quantities of index call longs. So this data is mixed to bullish. I would say this is ultra bullish data, I would say. Index put, यहाँ पे भी अच्छा कवर, finally retailers started covering their shorts in index put. So 1.2 lakh they have covered, and both FA and pros they started writing index put. So this is also good news. This is also mixed to bullish data. स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा खबर, एफ आई 18,000 और लॉन्ग्स ऐड कर दिया। तो आई वुड से दिस डेट इज ऑल्सो मिक्स टू बुलिश। स्टॉक कॉल में भी अच्छा खबर, रिटेलर फाइनली स्टार्टेड क्लियरिंग देयर लॉन्ग्स। अभी भी इनका 6 लाख के करीब है, और भी स्टॉकों में पिटाई देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा बात है कि प्रोस ने 42,000 लॉन्ग्स ऐड कर दिया, उनका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 3.92 लाख। दिस डाटा ऑल्सो आई वुड से मिक्स्ड टू बुलिश। स्टॉक पुट में भी यहाँ पे भी रिटेलर ने कुछ पुट कवर कर लिया 28,000। एफ ए एंड प्रोस उन लोगों ने फ्लश शॉर्ट कर दिया स्टॉक पुट। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बुलिश। So for overall, I wanted to conclude, retailers are mixed to bearish in index and stock options. FA and pros are mixed to bullish in both index and stock options. So overall, the FNO data is bullish. If global momentum is positive or neutral, our market should open a gap up, and the momentum continuation should happen.
If you look at the cash market data, DA purchased 4,189 crore and FA hardly sold 439 crore. And this is a smallest selling in the recent times. So all the data indicates upward momentum. और जितना भी कैश मार्केट में सेलिंग है मुझे लग रहा है रिटेलर और प्रोस ने किया होगा. Let us look at the top gainers. Lot of stocks are in the top gainers. Yeah, friends, I have arranged this in volume wise data. तो जितना भी वॉल्यूम है हाई वॉल्यूम है यहाँ कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना. सारे स्टॉक्स जितना भी बैंक फाइनेंशियल्स आईटी इवन मेटल सेक्टर सब जगह पे बुलिशनेस दिख रही है या रेट कट की वजह से हुआ. तो मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है, आईटी को छोड़ के आईटी में कोई भी बॉन्ड्स आते हैं आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर करना. बाकी जितना भी सेक्टर है आप उसको बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना. टॉप लॉसर में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, इटर्नल बेल वगैरह जितना भी डिफेंस स्टॉक में पुतिन जब इंडिया आया तो क्या एक्सपेक्टेशन था, जितना भी डिफेंस स्टॉक है उनमें अच्छा खासा बाउंस आएगा. सब लोग बुलिश बन गए सारे रिटेलर. जब सब लोग बुलिश बुलिश बन जाते ऑपरेटर उन लोगों को पैसा बनाना देते, इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया डिफेंस स्टॉक को नीचे ला दिया. तो मंडे में मान लो इसमें कोई भी डिप आता है बेल में तो बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना. एटर्नल को छोड़ देना. एटर्नल कोई भी डिप जो से बाउंस आते हैं आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना. और एच यू एल बारे में कोई भी बाउंस आते हैं इनिशियल हाफ में आप उसको सेलिंग के लिए सोच लेना. और वॉल्यूम आप चेक करते हैं उसी के मुताबिक आप अपना ट्रेड सेटअप बना लेना. Finally, we are at the technical outlook and view for our Monday, and we'll start from Nifty. Nifty till the time Nifty is holding 26,160, you shouldn't short it. अगर एक बार एक टूट गया तो फर्स्ट टारगेट 110 फॉलोड बाय 2670 तक मिल सकते हैं. मेजर सपोर्ट 25,900 है. तो जब तक इसको ऊपर है ये बुलिश नजरिए से इसको देख लेना. तो लॉन्ग्स के लिए 26,230 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोज लेना. तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 26,300 फॉलोड बाय 26,360. मेजर रेजिस्टेंस है 26,300. तो मेरे हिसाब से अवॉर्ड शॉर्ट्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 20 MA. मैंने आपको पैरेलल चैनल वगैरह बताई उसको देखते रहना कि सर इसका अच्छा दिख रहा है, अप मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं. बैंक निफ्टी में 59,750 के नीचे आप शॉर्ट करना है, स्कैल्पिंग शॉर्ट रहेगा. 59,600 है एक्चुअल लेवल इसका वीकनेस का. अगर एक बार तोड़ दिया तो आपको 59,500 इवन 59,350 तक भी मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए 59,800 को ऊपर ही लॉन्ग करना. फर्स्ट टारगेट 950 फॉलोड बाय 60,060. रेजिस्टेंस 60,000 है. बैंक निफ्टी जब तक 59,500 के ऊपर है इसमें बुलिश नजरिए से ही देखना, पीसीआर अच्छा है. सेंसेक्स में 85,700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 85,400 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए 85,800 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना. ज़्यादा टारगेट मुझे नहीं दिख रहे मंडे में. सेंसेक्स में हो सकता है 300-400 पॉइंट्स मिल सकते हैं. 86,000 है रेजिस्टेंस से. सेंसेक्स में जब तक 85,500 के ऊपर है आप इसको बुलिश नजरिए से देख लेना, इसका भी पीसीआर अच्छा है. मिड कैप में 14,000 के नीचे आप शॉर्ट करना तो आपको टारगेट 13,910 तक मिल सकते हैं. जब तक 13,900 होल्ड है इसमें भी बाउंस आते रहेगा. लॉन्ग के लिए 1420 के ऊपर ही लॉन्ग सोचना, आपको 14,120 तक टारगेट मिल सकते हैं. जब तक 13,900 के नीचे नहीं जाते मिड कैप इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकते हैं. पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है. तो मेरे हिसाब से निफ्टी इज रेडी फॉर अ फ्रेश एटीएच एंड इट में गो देयर अनलेस सम ग्लोबल रेट. अगर ग्लोबल कुछ नेगेटिविटी नहीं आया तो ये इधर जाना ही चाहिए. तो मेरा भी बाय ऑन डिप्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबव 50 MA. जब तक 50 MA के ऊपर है कोई भी डिप आते 50 MA तक आप इसको बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं. मेरा स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड, अवॉइड अग्रेसिव शॉर्ट्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबव 50 and 20 MA. Finally, let us take a quick look at the global markets. Global momentum US में पॉजिटिव है, पॉजिटिव बंद हुआ. गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी को विश्वास नहीं करना. गिफ्ट निफ्टी मंडे को एक गैप अप के लिए रेडी है. तो यूएस मार्केट में मान लो यूएस फीचर्स मंडे अगर हल्का सा भी ग्रीन हुआ गिफ्ट निफ्टी भागना शुरू हो जाएगा क्योंकि एफएनओ डाटा इज फुल्ली बुलिश. That's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel, and I would also appreciate all your comments. Thank you.